Your opinion of others is none of their business. Their opinion of you is none of your business. It is as simple as that. सबको अपने आप में राइट है वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि वो इफेक्टिवली आपकी लाइफ इफेक्ट ही कर रहे हैं। और कभी कभी आपको भी थिक स्किन रखनी पड़ेगी कि ठीक है, अगर हो भी रही है इफेक्ट तो मुझे एक तरीका निकालना है जहाँ वो मुझे इफेक्ट ना करे। वो कैसे निकालना है कि उन्हें सोचने दो। जब तक कुछ एक्शन नहीं है ऐसा जो मेरी लाइफ के लिए डेट्रीमेंटल है, तब तक मैं अपने स्पेस में आई विल प्रोटेक्ट माई पीस. I will have a strong boundary if it comes to that, and if needed I will need to cut off that relationship, then I need to move on. But it doesn't mean I need to fight every battle in my life, because you need to be careful with your energy. Sometimes it doesn't matter being right, it matters that you are at a place where you feel peaceful, you are at a place where you are enjoying and rather using that time doing something that you enjoy doing, because time is limited. You can either spend it fixing all of these threads and fixing and controlling what others think of you, or you can just sit in peace, use that time wisely and understand कि चलो यार उनको सोचने दो, उससे कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है। फर्क भी पड़ा है तो मैं क्यों अपने ऊपर फर्क पड़ने दूं, मुझे नहीं फर्क पड़ने दे रहा है, मेरे पास और इम्पोर्टेंट चीज़ है करने के लिए। तो जब मुझे ये बात समझ आने लगी, धीरे धीरे मैंने इसको प्रैक्टिस करा, और उसके बाद कैसे प्रैक्टिस करा जिससे इफेक्टिवली आज मैं बिल्कुल भी नहीं सोच पाती हूँ। मेरे को अभी भी बहुत बार थॉट्स आता है, तो मैं एक तरीके से पहले प्रोसेस करती हूँ और फिर उसको इम्प्लीमेंट करती हूँ। कुछ चीज़ें जो आपको हेल्प कर सकती है इम्प्लीमेंट करने में और इस थॉट को, इस लेसन को अपने लाइफ में इनकलकेट करने के लिए, उसके बारे में थोड़ा बात करते हैं। Number one, you need to free yourself from external validation too much. This need to, control what others think of you comes from a deep-rooted insecurity of seeking out others' validation, and an insecurity that tells you कि यार तुम अच्छे नहीं हो, or people don't want you around for whatever reason, for whatever trauma you have faced, for whatever past experiences you have had, you will always come to the conclusion कि यार ये मेरे साथ टाइम स्पेंड नहीं करना चाहते या मेरे बारे में खराब सोच रहे हैं। जब आप उस स्पेस से हट जाओगे और सिर्फ अपने ऊपर फोकस करना स्टार्ट कर दोगे, अपनी वैलिडेशन सीक आउट करने लगोगे, वेदर इट इज़ द करियर चॉइसेस दैट यू मेक, वेदर इट इज़ going out for a run in the morning saying that I'm not going to spend a night just hanging out and not sleeping, I'm going to spend my weekend whatever way I want, and even to the point what I want to wear, anything. If you stop seeking out others' validation, you will feel yourself that you have freed yourself of that external validation. I sometimes seek out validation from my family, from my partner, what I'm wearing, what I am eating, देखो मैंने खाना बनाया कैसा लग रहा है, या फिर how am I looking, all of these small innocuous things you ask your family, you ask your partner. But I also come from a place where if anyone would tell me, see, I don't think so, this looks good on you, then I would be like, okay, it makes sense to me, it looks good to me, I am very secure in that now. It came with a lot of practice, it came with a lot of saying, okay, it doesn't have to make sense to you, it makes sense to me, and that's okay. Let's just agree to disagree here, but you do not need to tell me that. You don't need to tell me if I uphold the standard of beauty or I uphold the standard of fashion or dressing sense up to your level, and that is okay. You do what you want to do, I will do what I want to do. So in that sense it is not even a fight, it is just a general conversation with myself that ठीक है, लोगों को बोलने दो, जिसको जो बोला है बोलने दो, मुझे तो ये पसंद है, and just move on, let it be. So I have become very secure in not seeking out external validation. This also comes from a need to control every narrative around you. You sometimes feel the need to explain yourself, over-explain yourself, tell them this is where I'm coming from. उससे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि लोगों के पास ना इमोशनल बैंडविड्थ भी कम होती है। वो इमोशनल बैंडविड्थ वो अपने ऊपर ही स्पेंड कर रहे हैं या फिर बहुत ज़्यादा अपने क्लोज्ड वन के ऊपर स्पेंड कर रहे हैं। तो तुम तो शायद उनके दिमाग में आ भी नहीं रहे हो इतना, और उस चीज़ में तुम उस सिचुएशन को सॉर्ट करने के लिए एक तरीके से, या फिर अपना स्टैंड पुट करने के लिए, पूरे समय तुम उस नैरेटिव को कंट्रोल करने के लिए ओवर द टॉप जाके चीज़ें कर रहे हो, ओवर कम्युनिकेट कर रहे हो, तो वो वाली चीज़ भी आपका ही इमोशनल वेलबींग ले रहा है, आप ही से वो एनर्जी चूस रहा है जो कि आप कहीं और यूज़ कर सकते हो। कभी कभी ना राइट होने से बेटर होता है कि ठीक है यार, तुम सोच लो तुम्हें मेरे बारे में क्या सोचना है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अभी मैं इतनी बड़ी हो गई हूँ, 30 साल की हो गई, तो मुझे समझ आता है कि हाँ यार, उसको
बोलने दो, तभी मुझे समझ आएगी मैच्योरिटी इसी में है कि चूज योर बैटल्स, पिक योर बैटल्स। तो अगर किसी को सोचना है तो सोचने दो, और उस समय पे मैं क्या कंट्रोल कर सकती हूँ, मैं ये कंट्रोल कर सकती हूँ कि मैं उससे जाके बात करूँ, समझा दूँ, नहीं समझा पा रही हूँ, अगर मैंने किसी चीज़ के लिए किसी से बाउंड्री क्रिएट करने की कोशिश करी और उन्होंने वो बाउंड्री को रिस्पेक्ट नहीं करा, और अगर नहीं करा तो देन इट इज़ अप टू मी टू डिसाइड व्हाट टू डू देयर। बट after a point I need to think of this is something that I already communicated and now it is beyond my control. Whatever is in my control, I can make sure I make effort for it, and if not, I cannot make effort for it. As simple as that. And that has also helped me take care of my emotional well-being in a way that says I cannot control everything around me and it is not up to me टू डिसाइड कि मैं ऐसे करूँगी तो वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगा या सोचेगी, ऐसे करूँगी तो वो मेरे बारे में ऐसा सोचेगा या ऐसा सोचेगी। मेरी लाइफ की जो डोर है, मेरी लाइफ की जो क्या कहते हैं स्टीयरिंग व्हील है, वो मेरे हाथ में है, राइट। तो मैं डिसाइड कर सकती हूँ कि वहाँ किस तरीके से जाना है और मुझे किस तरीके से मैनूवर करना है अपना पाथ। इसमें नीड फॉर कंट्रोल नहीं आना चाहिए, इसमें और लोगों का तो कोई इनपुट होना ही नहीं चाहिए। तो जो मैं एवरीडे एक्शंस कर रही हूँ उसमें भी मुझे थोड़ी सहजता दिखानी है कि जो मुझे करना है मैं उस पर ज़्यादा प्रायोरिटी दूँ, उसको ज़्यादा फोकस दूँ, अपने इंटरनल वैलिडेशन को बनाने में ज़्यादा फोकस दूँ, rather than controlling everything around me and in return ruining my emotional well-being. So both of these points are interconnected in a way where just the need to control, letting go of that need to control frees up my emotional bandwidth, and why would you not want to do that? Third very important thing, you need to practice self awareness. As I said, any time आपको कुछ भी करना है, किसी भी डायरेक्शन में जाना है, हमेशा अपने आप से पूछो क्या ये चीज़ मैं खुद के लिए कर रही हूँ या फिर मैं किसी के अप्रूवल के लिए कर रही हूँ। अगर किसी के लिए अप्रूवल के लिए कर रही हूँ तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कर रही हूँ। मैं ये नहीं कह रही हमेशा ही उसको दरकिनार कर दो, कभी कभी यार अगर तुम कॉर्पोरेट में हो, इफ़ यू आर वर्किंग, सम बायसेस आर इम्पॉर्टेंट टू हैव थिंग्स इन योर फेवर. So you need to be very truthful to yourself in understanding that why you are doing this thing. Of course, if you are not going to be very gelling with your co-workers and that is the feedback that you are getting, you need to fix it, right? Then you would care about others' opinion of you. But if it is on a personal scale, if it is something that is very subjective, then it is not a feedback, right? Friends are not giving feedback to each other. तो उसमें आप इतना क्या सोचना, फीडबैक कभी कभी दे रहा है कोई, आपको बता रहा है तो आप समझ लो, आप डिसाइड कर लो। बट अपनी पर्सनल स्पेस में, अपनी पर्सनल लाइफ में, इफ़ यू फाइंड योर सेल्फ फीलिंग लाइक मैं ये करूँ या ये करूँ, तो हमेशा अपने आप से क्वेश्चन पूछो ये तुम किस लिए करना चाहती हो, या फिर कुछ चीज़ ऐसी है कि जो तुम्हें स्टॉप करी है बिकॉज यू आर केयरिंग टू मच अबाउट अदर्स ओपिनियन, लेट इट बी योर फ्रेंड्स, योर फैमिली और योर पीयर्स। मैं ये यूट्यूब वीडियो बना रही हूँ, मैं इतने टाइम से सोशल मीडिया पे हूँ, और जब मैंने शुरू में अपना इंस्टाग्राम स्टार्ट किया था, आई स्टार्टेड इट just with my personal Instagram family, the people from my college and people from my job, and all of these were the only people who were following me. And I could have felt कि क्या stupid कर रही हूँ मैं, मुझे उस समय लगता भी था मेरे numbers कैसे दिख रहे होंगे, लोगों को क्या लगेगा। आज की डेट में भी जब मैं नए लोगों से मिलती हूँ, मेरे इतनी बार मैंने अपने सोशल सर्कल चेंज कर लिया because I have changed places too many times. तो जब भी I introduce myself, then I introduce myself, eventually they come to know that I also do content creation on the side, and then for a minute I just do think that what would they think of me, क्या सोच रहे होंगे, क्योंकि मेरे स्पेस में ना, जहाँ जो मेरा सर्कल है, everyone is working in corporate, everyone is just focusing too much on their career. I am also focusing on my career, but it is not to say that they have a social media career. It is only me, so I feel very left out. I can feel very lonely, and I can feel that my thoughts and my actions are not being validated. But in a way, it is also a blessing because they don't understand what is happening in the social media sphere. I don't find myself comparing myself to anyone in the physical realm that I hang out with, right? I hang out with people of different kind from all fields, and it is not to say that everyone is doing content creation. So वो वाली चीज़ जब मुझे लगती है, एक मिनट के लिए मुझे लगता है वो मेरे बारे में क्या सोचेंगे, पर उस एक मिनट के बाद मैं ऐसा सोचती हूँ कि यार मैं अपनी पर्सनल स्पेस में इतनी मेहनत करती हूँ, मेरे पास वैसे भी कम टाइम होता है, इसको भी मैनेज करना, ऑफिस भी मैनेज करना, घर भी मैनेज करना, सब कुछ कितना डिफिकल्ट होता है, उसमें मैं ये बैठ के भी सोचूं कि और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, फिर तो हो गया। तो एक सेकंड के लिए वो थॉट आता है, बट फिर मैं बहुत अच्छी हो गई हूँ इस चीज़ को हटाने में अपने दिमाग से, तो मैं फटाफट से हटा देती हूँ उस
कि पूजा उस जगह मत जाओ, जैसा है रहने दो, जिसको सोचना है सोचने दो. इट इज देयर राइट, इट इज देयर ओपिनियन एंड दे कैन फॉर्म देयर ओन ओपिनियन बेसिस व्हाट दे वांट टू फॉर्म अबाउट. Number 4, very important thing, you need to learn how to set boundaries in your life. If you don't do that, you will often find yourself being bogged down by other people's opinion of you. बहुत बार ऐसे लोग होते हैं जो आपको मेक श्योर करेंगे कि बताए वो आपको जज कर रहे हैं, उस जजमेंट से आप अफेक्ट हो गई. कुछ हमारी लाइफ में ट्रिगर्स होते हैं जिसकी वजह से हम लोग फील करते हैं कि यार मैं वहाँ जाऊँगी तो कोई मुझे बोल देगा तो मुझे अच्छा नहीं लगेगा. ठीक है, ये एक ट्रिगर होता है जो और लोग ट्रिगर कर रहे हैं आपको, और चाहते ना चाहते कभी कभी आप उस स्पेस में आ जाते हैं जहाँ आप हेल्प नहीं कर पाते. तो आपको क्या करना है, आपको उस समय एक डिसीजन लेना है. या तो आप मत जाओ वहाँ पे अगर आपको बहुत ज़्यादा ट्रिगर कर रहा है, या फिर आप मेक श्योर करो, आप सामने वाले बंदे को बताओ कि देखो मुझे नहीं पसंद आप मेरे से ऐसे बात करते हैं या आप मुझे ये बताते हैं. फॉर वट एवर रीजन, डोंट एक्सप्लेन योर सेल्फ, डोंट ओवर एक्सप्लेन योर सेल्फ, जस्ट टेल देम नो दिस इज नॉट राइट. And once you start doing that, you will feel कि you are empowered in your own way, you are empowered in your own thinking, that it doesn't matter to you what they think of you. Sometimes calling things out, sometimes telling them this is not right also means that you feel कि मैंने ये गलत कर दिया क्या, मैंने उनसे ऐसा क्यों बोला, मैं ज़्यादा रूड हो गई क्या. इसमें कोई रूड नहीं है. टू सेट बाउंड्रीज दैट आर गुड फॉर योर मेंटल हेल्थ, देयर आर वेरियस वेज टू डू दैट, एंड वंस यू सीक आउट दोज टूल्स, प्रैक्टिस देम. Know that your time is limited, your mental energy is limited, and once you start creating boundaries, which is a hard conversation to have with anyone, sometimes it is going to be hard conversation, but you know it is best for you. The more you do, the more you feel like अच्छा मुझे पता है मैं अपनी खुद की ड्राइवर हूँ इस लाइफ की, और मुझे पता है मैं केयरफुली अपना टाइम इन्वेस्ट करती हूँ, केयरफुली लोगों को बताती हूँ, अपफ्रंट बता देती हूँ कि ये सही नहीं है, एक बाउंड्री क्रिएट कर देती हूँ. इससे क्या होता है कि मुझे खुद में एम्पावर्ड फील होता है, खुद में कॉन्फिडेंट फील होता है कि कोई भी मेरा जो बिलीफ है खुद में, मेरा कॉन्फिडेंस नहीं हिला सकता या हिला सकती. एंड उसके बाद मुझे फ़र्क नहीं पड़ेगा और लोग मेरे बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि आई एम बिजी हेयर बिल्डिंग माई लाइफ. I can't be doing these things, I can't be involved in that kind of narrative, but if it is physically affecting me, it is my right to say no, it is my right to create boundaries. It is also your right to create boundaries with yourself. Whenever you are feeling that a mind of you is coming and sprouting and telling you ये कर रहे हो, ये क्यों कर रहे हो, तो तुम्हारे बारे में क्या सोच रहा है, then you need to cut it off, then you need to create a boundary with yourself. So it is important to create boundaries so that you feel that no matter what, no one's opinion of you is going to deter your belief in yourself. And last and the most important part, most important tip, focus on growth, focus on yourself. It is not very self-centered to be selfish with your time, it is not very self-centered to have your own goals. मेरे एग्जाम्पल से देख लो, जिन भी लोगों से मैं रियल लाइफ में मिलती हूँ शायद ही बहुत लोगों से मैं रिलेट कर पाती हूँ, बट फिर भी मैं कभी नहीं रुकती कि मैं अपने इंटरेस्ट के बारे में बात करूँ, मैं थोड़ा इंस्पायर करूँ, एक जना या दो जना ढूंढ लूँ जो बुक्स के बारे में बात करते हैं या रनिंग के बारे में बात करते हैं. बट a lot of people also come and ask me about social media. It is very sweet, it is very cute. People would ask me, अच्छा ये कैसे करते हो, ये कैसे करते हो, how do you edit videos, अच्छा ऐसा होता है तो क्या होता है. Because all of my friends, they are just focusing on their jobs, right? They don't have that life path, they don't have that goal, they have different goal, they have their own personal projects that they are doing in their own space, at their own home, on their computer, all of that they are doing, networking, whatever, but it is in a different sphere. So whenever I find myself doing that, I can also feel right less validated कि कोई भी validate करने वाला है या नहीं है, मैं सही जा रही हूँ या नहीं जा रही हूँ, ये सब चीज़ें दिमाग में आती हैं. बट जब भी मेरे को आती है तो मैं एक ही चीज़ अपने आप को बताती हूँ, मैं ये किसके लिए कर रही हूँ, मैं अपने लिए कर रही हूँ, और ये मेरे लिए, मेरे को सेंस मेक कर रहा है. किसी और को करे ना करे ठीक है, मैं समझा दूंगी एक लेवल तक किसी को, बट किसी को मुझे समझाने की आवश्यकता भी नहीं है. तो किसका अप्रूवल मैं सीख कर रही हूँ, अपना अप्रूवल सीख कर रही हूँ, और उसमें भी अगर कभी मैं फेल कर जाती हूँ तो ये मेरी जर्नी है. It is a very very safe, simple space for me where I am just doing it to challenge a narrative that I had long time back. The narrative that I can't speak, I am not a good public speaker, people don't want to listen to what I have to say, I don't have interest, I am not interesting enough. This is why I am doing this, and I have been very successful, I would like to say, in changing that narrative personally, even though it doesn't reflect in numbers all the time, even though it doesn't reflect on the social media
swear maybe I'm not that famous, maybe I don't garner millions of views. It doesn't matter to me. It matters that I have been able to change my narrative. I have come a long way. I have been able to speak without a script in front of this camera. I have been able to set up this camera, and I am nervous as hell right now, but I am confident as hell as well. These are two sides of the same coin for me at this point, and I have been very, very grateful for an older self who thought of this process as just being something of a learning experience. तो कभी भी आपको ऐसा लगे कि आप सिर्फ अप्रूवल के लिए कर रहे हो, आप सोचो आप अपनी ग्रोथ के लिए क्या कर रहे हो, उस चीज़ को फ्लिप कर दो और सोचो कि सबसे इम्पॉर्टेंट है कि मैं अपनी लाइफ में कितना आगे बढ़ रहा हूँ या बढ़ रही हूँ। कल मैं कहाँ था, कल मैं कहाँ थी, आज कहाँ जाना चाहती हूँ, आज कहाँ जाना चाहती हूँ। तो आपके लिए ईजियर होगा वो चॉइस मेक करना कि दूसरे लोगों के ओपिनियन को छोड़ दो। हमेशा सब कोई नहीं समझ पाता है, और मैंने तो ये देखा है कि अगर आपके थोड़े से डिफरेंट गोल होंगे तो अच्छा ही है, बहुत सारे लोग आपको नहीं समझ पाएंगे। मैं उसको एक पॉजिटिव साइन मानती हूँ कि आप वो देख पा रहे हो जो पूरी दुनिया नहीं देख पा रही, तो आप थोड़े यूनिक है ना, तो उस यूनिकनेस को अपने पास रखो। आप भेड़ चाल में नहीं चल रहे हो। ये कितनी अच्छी क्वालिटी है आज के वर्ल्ड में कि आप सबके ओपिनियन को इतना तवज्जो नहीं दे रहे हो, और आपका एक विजन है जो आपको ही समझ आता है। तो अगर आपको समझ आता है तो उसमें किसी के भी अप्रूवल लेने की ज़रूरत नहीं है। जस्ट थिंक ऑफ दिस प्रोसेस एज अ जर्नी वेयर यू आर लर्निंग न्यू थिंग्स, यू आर एक्सपोजिंग योर सेल्फ टू न्यू चैलेंजेस। द स्टेक इज ओनली यू, सो यू विल फील अ लिटिल बिट आराम से तुम चीज़ें कर सकते हो। थोड़ा सा तुमको लगेगा कि ज़िंदगी इतनी हार्ड नहीं है, उसको कॉम्प्लिकेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो दिस इज़ इट, दिस इज़ ऑल आई हैड टू से फॉर टुडे, एंड दिस इज़ माई input, this is my experience of turning this narrative around about constantly feeling the need to validate other people's opinion of me, constantly feeling insecure about other people's opinion about me. It doesn't really matter in the longer run, it doesn't really matter, क्योंकि ज़िंदगी छोटी है, सब भूल जाते हैं, सब अपने अपने काम में बिजी हैं। जिससे तुम आज बात कर रहे हो कल शायद तुम उनसे मिलो भी नहीं। चीज़ें बहुत जल्दी जल्दी चेंज होती रहती है, तो अपने पे फोकस करो, अपनी लाइफ पे फोकस करो, अपनी फैमिली पे फोकस करो, जो भी आपकी सेंस ऑफ फैमिली है उस पर फोकस करो, अपने गोल्स पे फोकस करो। आज के लिए इतना ही। आई होप दिस वीडियो वॉज यूजफुल, आई होप दिस वीडियो वॉज वैल्यूएबल। इफ इट वॉज, प्लीज कॉमेंट डाउन बिलो what has been your experiences in understanding and getting around this very, very hard concept, very, very hard mental block that we live with, and I think हम बहुत लेट समझ पाते हैं। तो प्लीज़ कमेंट करके मुझे बताना कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा है, और अगर ऐसा ही रहा है तो आपने ओवरकम करा या नहीं करा, या फिर आप किसी वीडियो का वेट कर रहे थे, या फिर आप किसी की गाइडेंस का वेट कर रहे थे टू गेट अराउंड दिस। If you like this video, please like it, share it with your friends and family who you think might benefit from this video. And as I always say, if you haven't already subscribed to the channel, subscribe to it. You can also turn on the notification bell. I am trying to monetize this channel. अभी बहुत ज़्यादा लंबा सफ़र है उसके लिए, पर उसमें हर एक चीज़ मैटर करती है, छोटी छोटी आपके इनपुट बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं। एंड आई वुड रियली अप्रिशिएट इफ़ यू कैन हेल्प द चैनल। मैं बहुत मेहनत करती हूँ और मैं बहुत एक्साइटेड भी रहती हूँ अपना दिन का काम ख़त्म करने के बाद इन वीडियोज़ को बनाने के लिए। तो अगर आपको मेहनत दिख रही है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड हेल्प मी monetize this channel soon. And with that said, I think I will see you guys in the next video. And with that said, we are at the end of this video. सूरज भी नीचे आने वाला है, अब दिन बहुत छोटे होने लगे हैं, और सर्दी भी आने वाली है जिस समय पे मैं वीडियो बना रही हूँ। दिवाली इज अराउंड द कॉर्नर। सो फन, आराम से रहो, जिंदगी में ज़्यादा मत सोचो, और अगर सोच रहे हो तो उस चीज़ से उभरो और मेक अ लिविंग, मेक अ लाइफ you are very excited to live. I will see you guys next time. Until then, take care of yourself.